हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और आज हम डिस्कस करेंगे कि नोड जेएस में हम क्लास कैसे बना सकते हैं। अगर आपने क्लास बनानी है तो एक तो ये मैंने फंक्शंस बनाया है क्योंकि हमने पिछली वीडियो में ये स्टडी किया है, दैट इज़ हाउ वी कैन create and define our function in the module and how those functions we can access in another module. So now today in this video you have to focus on that is how we can create a class. So class SG Maths, you can take suppose any name of the class, and then here I am going to create a one constructor in this class because this is the lecture or the video for the students who have done suppose what that is the object oriented in other languages also. So I am going to direct share with you that is the syntax how we can create the class in node.js. So here this is the constructor, and here in this node.js we can create the constructor with the name constructor and then first you need to focus on sum, right? Let's suppose we are creating the sum function. Here we have sum function taking two arguments. I am going to use here let res. Let res means this res is the local variable of this sum function, because in node.js we know that is let is used to define and declare suppose the local variables of that function. Now here I am adding these two variables, then I am returning here that is the value of res. Now the next function is also the same, that is it is also returning the value of res. Now here I am using one function display, and here in this display function I am using here this dot res. Now the question is, we have declared here res that is with let keyword, and here we have declared one res that is with let keyword. Now this res as well as this res, these are the local variables of their own functions. For example, this res is the function variable of this sum, and this res is the variable of this sub. Now here I am using this keyword, and if I am using a variable with this keyword, it means this is your global variable which can be accessed throughout the class. So now in JavaScript we get this facility if we are creating any variable with this dot res. So this is the variable which is class variable or public variable which we can access suppose in any suppose what that is the function. So this is the common variable which can be used by all these functions, or it can be the suppose one sort of class variable. Now here I am using what this dot num1 plus this dot num2. Now this means that this is the keyword which is going to refer the current class, so or object of the current class. Now here in constructor what I did, I created here what that is the num1, but along with this dot num1, it means कि ये जो num1 है this is the variable of what the current class. So num1 is equal to 1000 and here this dot num2 is equal to 200 and this dot res is equal to 0. अगर आप कहीं जावा और सी प्लस प्लस सीख के आते हैं तो कई बार हम जावा में यहाँ लिखते थे int num1 ऐसे वाला वेरिएबल. सो जावास्क्रिप्ट ने कहा है आपको कि यहाँ पर आप जो वेरिएबल बनाएंगे दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय व्हाट दैट इज ऑल द मेथड्स ऑफ दैट क्लास. सो इसमें जावास्क्रिप्ट में और नोड जेएस में हमारे पास फैसिलिटी है कि हम दिस कीवर्ड के साथ जो वेरिएबल बनाते हैं वो आपका क्लास लेवल का हो जाता है, उसको हम किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं. सो अब ये जो 1000 की वैल्यू है वो यहाँ पर जो है दिस डॉट नंबर लिखेंगे तो 1000 प्लस दिस डॉट num2 लिखेंगे तो आपके पास num2 की वैल्यू थी 200, ये दोनों ऐड होंगी और दिस डॉट res में स्टोर हो जाएंगी. अब मैंने यहाँ से रिटर्न किया जब करली ब्रैकेट्स हम लगाते हैं तो वो एक आपके पास एक जेसन बन जाता है, मीन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है. तो नंबर यहाँ पर जो मैंने लिखा है नंबर हमारे पास एक की आ गई, मीन्स एक प्रॉपर्टी आ गई और उसकी वैल्यू जो है मैंने दिस डॉट नंबर पास की है. फिर मैंने एक वेरिएबल num2 पास कर दिया, नाम num2 रखा है दिस डॉट num2, उसमें जो हमारे पास दिस डॉट num2 की वैल्यू चल जाएगी और एंड में मैंने res की जो वैल्यू सेट की है वो दिस डॉट res है और इसको मैंने रिटर्न किया. अगर इसको रिटर्न किया तो जब एक आपने लाइन और ध्यान में रखनी, यहाँ पर मैंने लिखा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट एसजी मैथ्स. ये नाम हम अपनी चॉइस का रख सकते हैं, मैंने वही नाम रखा है जो क्लास का नाम है, इज इक्वल टू करके मैंने एसजी मैथ्स कर दिया. इट मीन्स आई एम नाउ एक्सपोर्टिंग दैट दिस क्लास so that we can use this class in the module where we have to require this module. So next मेरे पास है def module use.js.
now what we have to do here, because we have require, right? तो हमने यहाँ require मेथड यूज़ किया और उसमें वी आर व्हाट रिक्वायरिंग दिस मॉड्यूल, दैट इज़ डेफ मॉड्यूल। डेफ मॉड्यूल आपके पास ये है जिसमें मैंने अपनी क्लास डिफाइन की हुई है। ये हमने पहले भी स्टडी किया है पिछली वीडियो में। अभी आपने जो फोकस करना है वो इस लाइन के ऊपर जाकर फोकस करना है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, कॉन्स्ट एम्प्टी इज इक्वल टू न्यू एंड देन स्पेस डाल के हमने क्या किया, जो MOD1 है उस MOD1 डॉट उसके आगे SG मैथ्स लगाया आपने, और ये राउंड ब्रैकेट्स हैं। जो जावा वगैरह सीख के आए हैं उनको पता है कि न्यू इज़ यूज्ड फॉर व्हाट, दैट इज़ टू एलोकेट दी मेमोरी ऑन फ्री स्टोर। सो यहाँ पर हमने क्या किया, mod1 जो है वो उसके पास रेफरेंस है आपके इस मॉड्यूल का, उससे मुझे डॉट SG मैथ्स जो है उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो empty जो है वो एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास SG मैथ्स क्लास का। अब हमने empty डॉट सम को कॉल किया। जब सम कॉल किया तो उसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए, उसने जो रिटर्न किया वो ANS में आ गया। रिटर्न की वैल्यू हम ANS में डिस्प्ले कर लेंगे। फिर मैंने सब फंक्शन कॉल किया, उसमें 100 और 20 दिया। तो जब आपका सब कॉल होगा आप उसमें देखिए जो मॉड्यूल है आपके पास, ये मेरे पास सब फंक्शन है, ये भी आपको रिटर्न करता है। तो वो जो रिटर्न करेगा वो ANS में स्टोर करेगा। मैंने एक ही वेरिएबल यूटिलाइज़ कर लिया, ANS आपका यहाँ यूज़ होगा। ANS की वैल्यू जो है वो आपके ANS में रिटर्न हो जाएगी। ये मैंने ANS की वैल्यू दे दी। उसके बाद जो डिस्प्ले है उसको भी मैंने ANS में रिटर्न कराया। इस बार डिस्प्ले जो है वो आपको एक जेसन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो मैंने क्या कर रहा हूँ, ANS.number, ANS.num2 और ANS.res, तो तीनों वैल्यूज़ हम प्रिंट कर रहे हैं। राइट क्लिक करिए, रन द कोड, और आप चेक करिए आपने यहाँ 1 by 1 करके मैच करनी है जो आपने कोड लिखा था। सबसे पहले सम, फिर सब और फिर डिस्प्ले। देखिए सम, सब और डिस्प्ले। अब आप यहाँ पर इसको वेरीफाई करिए अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं। यहाँ आ गया, the ANS is 120, this is sum, the subtraction is 80, ये आपके पास सब्ट्रैक्शन आ गया। और वैल्यू ऑफ डिस्प्ले फंक्शन, सो वैल्यू ऑफ डिस्प्ले फंक्शन मीन्स फर्स्ट वैल्यू जो है नम1 की वो 1000 है, num2 की 200 है, और दोनों ऐड करके हमारे पास 1200 आ जाती है। तो ये था कि हाउ वी कैन क्रिएट दी क्लास एंड कैसे हम क्लास के अंदर फंक्शंस बना सकते हैं। और जो ये आपने बनाया है ये आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है। इसमें आपने ये ध्यान में रखना है कि आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हैं। Gradually, slow and steady, suppose the Node.js is getting mature day by day. So अभी हमने क्लास यूज़ किया, इसको हम कभी जब लार्ज प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें हम इनको यूज़ कर सकते हैं। So thanks for watching.